Now we are going to start with the chapter number 5, Morphology of Flowering Plants. And before this particular chapter, we have already finished with the chapter number 1, the living world, the chapter number 8, cell, the basic unit of life, biomolecules, and now we are going to start with the chapter number 5, that is the morphology of flowering plants. And before going to start with the chapter, I would like to mention that I will explain about the name of the chapter. I know that you are not interested in the name. You are just interested in the things that what will come in the examination. And that's why most of the students do not get the good marks because they don't have any base. So first I will explain you about the meaning of the name. That is my system. If you like it or not, but I will follow my system. And then I will tell you that what are the subjects matter in this particular chapter. And then I will start with the chapter. So here are the two important names you have to understand. One is the morphology and another one is the flowering plant. देखो, morphology का मतलब morphos means external feature and logos means science. तो morphology का मतलब हुआ it is a branch of biology which deals with the study of external size, shape, structure of any living organism. मतलब बायोलॉजी का जो हिस्सा या जो पोर्शन, जो साइंस एक ऑर्गेनिज्म का, ये प्लांट हो, एनिमल हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म हो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बाहर वाले साइज, शेप, स्ट्रक्चर, इन सारी चीज़ों को स्टडी करता है, दैट साइंस विल बी कॉल्ड टू बी एज द मॉर्फोलॉजी. सो हम इस चैप्टर में किसी भी ऑर्गेनिज्म, स्पेशली द प्लांट के बारे में, इनका बाहर वाले हिस्से का स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे इस चैप्टर में. एंड द फ्लावरिंग प्लांट, सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लावरिंग प्लांट, ऐसे तो सिंपल सा मीनिंग है फ्लावरिंग प्लांट, जो प्लांट फ्लावर देता है उसको फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है. लेकिन तुम्हें अच्छी तरह से जानना है बिकॉज यू हैव नॉट स्टडीड स्टिल अबाउट द चैप्टर नंबर 4, दैट इज अ प्लांट किंगडम. तब शायद चैप्टर नंबर 3 आई थिंक, 3 और 4, एनीवे वन इज प्लांट एंड वन इज एनिमल. अगर पढ़ते तो जानते प्लांट्स को एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. लिविंग वर्ल्ड, सॉरी, हम जब प्लांट किंगडम सिखाएंगे तुम लोगों को, मैं कहूँगा तुमको कि प्लांट किंगडम को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है. पहला है थैलोफाइट, पहला है क्रिप्टोगैम्स एंड सेकंड इज द फेनोगैम्स. प्लांट किंगडम हैज बीन डिवाइडेड इनटू द टू ग्रुप. वन इज द क्रिप्टोगैम्स एंड वन इज द फेनोगैम्स. Cryptos actually means hidden and gammas means the marriage. So cryptos means hidden and gammas means marriage. मतलब जो यहाँ पे मैरिज मतलब प्लांट का तो शादी नहीं होता है. मैरिज एक्चुअली मीन्स रिप्रोडक्शन. सो हियर इट इज मीनिंग अबाउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. सो प्लांट के शरीर में दो तरह के पार्ट होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड वेजिटेटिव पार्ट. वेजिटेटिव पार्ट होता है स्टेम, रूट, लीफ, एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर, फ्रूट, सीड. क्रिप्टोस मीन्स हिडन. सो जिन प्लांट्स में the reproductive structure like flower, fruit, seeds, these are altogether absent or hidden, they are called as the cryptogams. And phaneros means visible and gammas means the marriage. So the plant in which flower, fruit, seed ये सब visible है या present है, इनको phanerogams कहा जाता है. Right? So these cryptogams has once again been divided into the three different groups. One is the Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta, and one is the, and phanerogams has been divided into the two groups. One is the Gymnosperm and one is the Angiosperm. So here you can see in this the diagram, the plant kingdom have been divided into the two different groups. One is the cryptogam and one is the phanerogam.
And this kryptos means hidden, and gammas actually means the marriage. Marriage means reproduction. So here it is indicating about the reproductive structure. So those plants in which the reproductive structure like flower, fruit, seeds are hidden, they are called as the cryptogams, which includes the Thallophyta, the Bryophyta, and even the Pteridophyta. And phaneros means the visible, and gammas means the marriage. So the plants in which the reproductive structures like flower, fruit, and seed are visible or present, they are called as the phanerogams, which includes gymnosperm and angiosperm. So they do not have any flower, fruit, seeds. Phanerogams এর মধ্যে জিমনোস্পার্মস এন্ড এনজিওস্পার্ম আছে। জিমনোস্পার্মে ফ্লাওয়ার আছে, কিন্তু ইট ইজ নট কমপ্লিট, কারণ ফ্লাওয়ার্সের মধ্যে মেল এবং ফিমেল রিপ্রোডাক্টিভ স্ট্রাকচার থাকে, বা যে কোনো একটা থাকে। অ্যান্ড স্পেশালি ফিমেল রিপ্রোডাক্টিভ স্ট্রাকচার বা গাইনোসিয়ামে 3টা স্ট্রাকচার আছে। যেমন তুমি জানো, যদি গাইনোসিয়াম ফিমেল রিপ্রোডাক্টিভ স্ট্রাকচার যার ইন্ডিভিজুয়াল ইউনিটসগুলিকে আমরা কার্পেল বলি, ইন্ডিভিজুয়াল ইউনিটস অফ দ্য গাইনোসিয়াম আর কল টু বি এজ দ্য কার্পেল। এদের মধ্যে স্ট্রাকচারটা, কার্পেলের স্ট্রাকচার দেখতে এমন হয়। ইট ইজ এ ফ্লাস্ক শেপের স্ট্রাকচার, যেখানে ওপরের স্ট্রাকচারটাকে বলা হয়, দিস ইজ কল টু বি অ্যাজ দ্যাট অফ দ্য রিসেপ্টাকল অথবা স্টিগমা। এটাকে বলা হয় স্টাইল, এন্ড বাসাল সোলেন পোর্শন ইজ কল্ড এজ দ্য ওভারি। জিমনোস্পার্মে আর সব থাকলেও ওভারি থাকে না। ইজ ইট ক্লিয়ার? ওভারি ইজ নট প্রেজেন্ট, এবং যে ওভারি পরবর্তীকালে ফ্রুটে কনভার্ট হয়। জিমনোস্পার্মে ওভারি নাই, তাই এখানে কোনো ফ্রুট ডেভেলপমেন্ট করে না। সো জিমনোস্পার্মসকে আমরা নন ফ্লাওয়ারিং ক্যাটাগরিতে রাখতে পারি, অ্যান্ড আলটিমেটলি এনজিওস্পার্মস আর কল টু বি এজ দ্য ট্রু ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্টস। আর আমাদের আজকের চ্যাপ্টার উইথ দ্যাট অফ দ্য এনজিওস্পার্ম, দ্যাট মিনস দ্য ট্রু ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্টস নিয়ে, যেখানে অল দ্য ভেজিটেটিভ স্ট্রাকচার লাইক স্টেম, রুট, লিফ এবং রিপ্রোডাক্টিভ স্ট্রাকচার লাইক ফ্লাওয়ার, ফ্রুট, সিডস আছে, এবং সমস্ত রিপ্রোডাক্টিভ স্ট্রাকচার্স আর কমপ্লিট। সো এই চ্যাপ্টারের নাম হলো মরফোলজি অফ ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্টস। সো স্পেশালি এই চ্যাপ্টারে উই আর গোয়িং টু স্টাডি অ্যাবাউট দ্য, আমি ঘুরিয়ে যদি বলি, এক্সটার্নাল সাইজ শেপ স্ট্রাকচার অফ দ্য এনজিওস্পার্ম। So to continue with the chapter, first I would like to mention that in this particular chapter we will study about all the morphology of the flowering plant. Now flowering plants का body parts को दो तरह से divide किया जाता है. One is the vegetative part and one is the reproductive part. Vegetative part means the stem, root and leaf, and they are not responsible for the reproduction or sexual reproduction actually, but they can take part in the vegetative propagation. मतलब किसी किसी प्लांट से लीफ से भी प्लांट हो जाता है, कोई प्लांट तो रूट से भी होता है, कोई प्लांट तो स्टेम से। जैसे कि पोटैटो को जमीन पे रख दो, वहां से पोटैटो आ मतलब नया प्लांट आ सकता है। रोज का प्लांट स्टेम को काट दो, जमीन पे गाड़ दो, इट कैन गिव राइज टू द न्यू प्लांट। सो दीज पार्ट्स आर एक्चुअली कॉल्ड एज द वेजिटेटिव पार्ट। तो कौन कौन सा वेजिटेटिव पार्ट हुआ? स्टेम, रूट, लीफ। रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन सा है? द फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। इस चैप्टर में हम लोग इन सारे 6 पार्ट्स को, सबसे पहले रूट, इसके बाद स्टेम, इसके बाद लिव्स के बारे में पढ़ेंगे, लिव्स, इसके बाद फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। एक्चुअली सेकेंड ईयर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा जाता है। तो ये पढ़ने के लिए, जानने के लिए बेसिकली the vegetative parts, reproductive parts like stem, flower, fruit and seed को इस साल तुम्हें अच्छी तरह से जानना है। So to start with the chapter, first I will mention some theory, some theoretical concept regarding the chapter as well as the angiosperm. सबसे पहले मैंने जैसे ऐसे अभी तुम लोगों को समझाया था, फ्लावरिंग प्लांट्स को मतलब फेनोरोगैम्स को हम 2 तरह से डिवाइड करते हैं, एक तो जिम्नोस्पर्म और एक तो एंजियोस्पर्म। देखो, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म दोनों को ही एक्चुअली फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जा सकता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में
फ्लावर इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है? क्योंकि धीरे धीरे इस चैप्टर में सीखोगे एक फ्लावर में कैलिक्स, कोरोला, ओके, दीज आर एक्सेसरी पार्ट, एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होना जरूरी है। गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले डायग्राम में दिखाया था, इनमें 3 पार्ट है। गाइनोशियम में ऊपर से है स्टिग्मा, इसके बाद लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक स्टाइल एंड नीचे है ओवारी। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स के फ्लावर में ओवारी नहीं है। ये जो ओवारी है ना, फर्टिलाइजेशन के बाद ये ओवारी फ्रूट में बदल जाता है। सो जिम्नोस्पर्म्स में ओवारी नहीं है, सो फ्रूट भी नहीं है। सो जिम्नोस्पर्म्स के फ्लावर को इनकम्प्लीट फ्लावर कहा जाता है। सो जिम्नोस्पर्म्स में फ्रूट नहीं होता है और ये ओवारी के अंदर होता है ओव्यूल। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल सीड में और ओवारी फ्रूट में डेवलप करता है। ओव्यूल ओवारी के अंदर रहता है, सो सीड विल रिमेन प्रेजेंट इनसाइड दैट ऑफ द फ्रूट। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में ओवारी ना होने के कारण सीड्स आर नेकेड, मतलब दे आर नॉट एनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट। अभी आया एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म्स सब तरह से कंप्लीट है, उसका फ्लावर भी कंप्लीट है, सो इट इज अ ट्रू फ्लावरिंग प्लांट। सो तुमने कुछ देर पहले देखा था सारे क्रिप्टोगैम्स और एंजियोस्पर्म्स को मिला के, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स को मिला के धरती में सबसे पहले प्लांट कौन था, किस ग्रुप का आया था? थैलोफाइटा, जो क्रिप्टोगैम है एंड जो एल्गी जमीन पे, भीगा जमीन पे या ज्यादातर पानी पे रहता है। इसके बाद इवोल्यूशन पे होके आया ब्रायोफाइटा, इसके बाद थैलोफाइटा, इसके बाद जैसे कि मैंने कहा ब्रायोफाइटा सबसे पहले, थैलोफाइटा, इसके बाद ब्रायोफाइटा, इसके बाद फर्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट इज द थैलोफाइटा जो बिल्कुल पानी पे, इसके बाद ब्रायोफाइटा जो जमीन पे आया, इसके बाद टेरिडोफाइटा, इसके बाद जिम्नोस्पर्म एंड सबसे बाद who is the most recent, that is the angiosperm. So angiosperms को कहा जा सकता है most recent, most advanced, most evolved and most abundant. আজকে আমরা চারদিকে চোখ মেললে পরে যেসব প্ল্যান্ট দেখি তার 90% is the angiosperm. These are the flowering plants and जिनमें ovules are present within the ovary. Therefore seeds are present within the fruit. ज्यादातर एंजियोस्पर्म हार्ब होता है। हार्ब मतलब जो छोटा छोटा प्लांट, लाइक तुलसी, ओके। इसके बाद जो थोड़ा सा बड़ा बुश होता है जिसको श्रब कहा जाता है, जैसे कि चाइना रोज, और सबसे बड़ा ट्री। नाउ उनका रिप्रोडक्शन टाइप के ऊपर डिपेंड करके एनुअल, जो साल में एक बार फ्रूट्स फ्लावर देता है, कुछ बाइएनियल, मतलब इस बार फ्लावर आया लेकिन इसी मौसम अगली बार आने के बाद ही फ्रूट आएगा, एंड पेरेनियल जो हर वक्त फ्लावर और फ्रूट देता है, इसको पेरेनियल कहा जाता है। देखो एंजियोस्पर्म्स का, अगर हम इस चैप्टर में एंजियोस्पर्म्स के बारे में जानेंगे तो एंजियोस्पर्म्स के बारे में सबसे पहले हमें कुछ क्विज टाइप ऑफ द क्वेश्चन जानना जरूरी है। आज हम देखते तो चारों ओर देयर आर द बिग बिग ट्रीज, दीज आर एंजियोस्पर्म। कुछ तो जिम्नोस्पर्म्स भी है, कुछ टेरिडोफाइट्स भी है, लेकिन एंजियोस्पर्म्स का स्ट्रक्चर एकदम छोटा से लेके एकदम बड़ा तक हो सकता है। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म्स यू कैन सी इज, सबसे छोटा एंजियोस्पर्म्स यू कैन सी इट इज ओल्फिया माइक्रोस्कोपिका, জলের মধ্যে শেওলার মতো ছোট্ট ছোট্ট ভেসে থাকে। दिस आर ऑल्सो कॉल्ड इज अ डकवीड, जो इतना छोटा है जिसका डायमीटर है 0.1 मिलीमीटर, एंड सबसे लंबा है दैट इज यूकैलिप्टस रेगनांस
जो 100 मीटर टॉल, ये सबसे टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है, लेकिन टॉलेस्ट प्लांट नहीं है, क्योंकि सबसे टॉलेस्ट प्लांट है जिम्नोस्पर्म, 111 मीटर टॉल. देयर इज अ सिक्विया नोन एज कोस्टल रेडवुड. सो सबसे छोटा एंजियोस्पर्म कौन है? ओल्फिया माइक्रोस्कोपिका. सबसे लंबा एंजियोस्पर्म कौन है? यूकैलिप्टस रेग्नांस. सबसे बड़ा फ्लावर कौन सा है? रैफ्लाशिया आर्नोल्डी. यू कैन सी द पिक्चर. रैफ्लाशिया आर्नोल्डी, ये इतना बड़ा है, इसका स्टेम ओके वगैरह, स्टेम रूट सब एकदम पतला हेयर लाइक स्ट्रक्चर है. ओके, सो रैफ्लाशिया आर्नोल्डी इज नोन एज द लार्जेस्ट फ्लावर जिनका स्टेम एंड रूट रिड्यूस्ड इनटू द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे के जैसे छोटा छोटा. ठीक है, तो गया स्ट्रक्चर के बारे में एंजियोस्पर्म्स का. अभी अगर हम उनका न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो आप कहोगे न्यूट्रिशन के बारे में क्या बात करें, क्योंकि प्लांट्स तो ऑटोट्रोफ है, मतलब दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. लेकिन नहीं, एंजियोस्पर्म्स ऑटोट्रोफी बात सही है, but some may be heterotrophic also. That means they depend on the other organism for their food. And these heterotrophic plants are, or heterotrophic mode of nutrition are, parasitic हो सकता है, saprophytic हो सकता है, and even insectivorous भी हो सकता है. Parasite मतलब जो प्लांट दूसरा किसी प्लांट के ऊपर ग्रो करता है, उनके शरीर से रेडीमेड खाना चूस लेता है. That is called as a parasitic angiosperm. Saprophyte मतलब वो सड़ा हुआ, गिला हुआ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करता है और वहां से न्यूट्रिशन को सक करता है. दैट इज कॉल्ड एज अ saprophyte. एंड कुछ तो इंसेक्टिवोरस भी होता है, इंसेक्ट को ट्रैप करके उनके शरीर से प्रोटीन या अदर तरह की न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है. सो हम अगर heterotrophic mode of nutrition into the plants को देखें, there are some parasitic angiosperm. Parasite मतलब the organism which grow on other host organism for sucking the nutrition from the host. And वो दूसरा host मतलब दूसरा plant के शरीर से suck करता है via a root. ये parasitic angiosperm अपना शरीर से एक रूट निकालता है, मतलब रूट्स निकालते हैं जिनको होस्टोरिया या तो सकिंग रूट कहा जाता है. ठीक है, जो सकिंग रूट वो होस्ट के शरीर के अंदर डाल देते हैं और वहां से न्यूट्रिशन को सक करते हैं. अभी पैरासाइटिक एंजियोस्पर्म्स को हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं. जो होस्ट के स्टेम से लेते हैं, स्टेम पैरासाइट. जो रूट से लेते हैं, रूट पैरासाइट. ये स्टेम और रूट पैरासाइट फिर से दो तरह की है. स्टेम पैरासाइट में वन है पार्शियल स्टेम पैरासाइट, वन है टोटल स्टेम पैरासाइट. पार्शियल मतलब जो होस्ट के स्टेम से कुछ खाना लेता है एंड कुछ खुद भी प्रिपेयर कर पाता है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज हेमी पैरासाइट. हेमी मीन्स पार्शियल. एंड टोटल स्टेम पैरासाइट जो टोटली एक होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर सकिंग द न्यूट्रिशन. सिमिलरली रूट पैरासाइट भी दो तरह की, वन इज द टोटल रूट पैरासाइट एंड वन इज अ पार्शियल रूट पैरासाइट. सो यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल दिया, वो एग्जाम में आ सकता है. डोडर, कस्कुटा इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द टोटल स्टेम पैरासाइट. रैफ्लाशिया इज ए टोटल रूट पैरासाइट. हेमी पैरासाइट और पार्शियल पैरासाइट जो खाने का कुछ हद तक, जैसे कि वाटर एंड मिनरल सॉल्ट, वो होस्ट के शरीर से लेता है, लेकिन कुछ खुद भी प्रिपेयर कर पाता है, जैसे कि भिस्कम, कॉमनली कॉल्ड एज मिसलटो. देखो साइंटिफिक नाम है ना, जेनस नेम है ये, इसलिए मैंने इसको प्रिंटेड में इटैलिक्स में किया. मिसलटो पार्शियल स्टेम पैरासाइट. एंड संटलम एल्बम जिसको चंदन भी कहा जाता है, देयर इज द लार्जेस्ट पैरासाइट. ये भी बात याद रखना है, देयर इज द लार्जेस्ट पैरासाइट
इट इज ए पार्शियल रूट पैरासाइट। वो किसी होस्ट के रूट के ऊपर पार्शियली डिपेंड करता है। ये गया पैरासाइटिक न्यूट्रिशन ऑफ द एंजियोस्पर्म। अगर एंजियोस्पर्म्स के बारे में जानना है तो हमें उसका स्ट्रक्चर, उसका न्यूट्रिशन सब कुछ जानना है। नेक्स्ट है सैप्रोफाइट। यूं तो प्लांट अपना खाना खुद बना लेता है, लेकिन कुछ प्लांट थे जो दूसरा प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है फॉर देयर फूड। अगर वो होस्ट लाइव हुआ तब हम इस प्लांट को कहते हैं पैरासाइट। इन अगर वो डेड हुआ, मतलब सड़ा हुआ, गिला हुआ होस्ट हुआ, तो उसको हम सैप्रोफाइट कहते हैं। मतलब दिस प्लांट व्हिच इज ऑब्टेनिंग द न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, दैट इज कॉल्ड एज द सैप्रोफाइटिक एंजियोस्पर्म अथवा ह्यूमस प्लांट, HUMUS। जैसे मोनोट्रोपा यूनिफ्लोरा, कॉमनली कॉल्ड एज इंडियन पाइप, या तो नियोशिया, इट इज जस्ट जेनस नेम, स्पीसीज नेम हैज नॉट बीन गिवन, commonly called as a bird's nest orchid. They are the example of some flowering saprophyte, मतलब saprophytic angiosperm। तुम्हें पूछा जाएगा नेम वन saprophytic angiosperm, तुम लिखोगे मोनोट्रोपा यूनिफ्लोरा, सेपरेटली अंडरलाइन करना जेनस नेम, स्पीसीज नेम। या तो तुम लिख सकते हो नियोशिया स्पीसीज, नियोशिया स्पीसीज नेम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, सो तुम सिर्फ स्पीसीज भी लिख सकते हो, नियोशिया स्पीसीज। नेक्स्ट आया इपीफाइट। पैरासाइट सैप्रोफाइट के बाद इपीफाइट। इपीफाइट कौन होता है? द प्लांट विच ग्रोज ऑन अदर होस्ट प्लांट जस्ट फॉर स्पेस, लेकिन कोई न्यूट्रिशन नहीं लेता है। इपी मीन्स अभाव, फाइटोस मीन्स प्लांट। सो जो प्लांट होस्ट प्लांट के ऊपर ग्रो करता है जस्ट ओनली फॉर स्पेस, लेकिन कुछ भी नहीं लेता है, दे आर कॉल्ड एज द इपीफाइट। जैसे कि ऑर्किड, सो वो उनको न्यूट्रिशन तो वो खुद बना लेगा, लेकिन पानी कहां से मिलेगा, क्योंकि सॉइल के साथ उनका कोई कांटेक्ट नहीं है। सो वो अपना शरीर से कुछ रूट निकालते जो हवा में तैरता है, हैंगिंग रूट्स। कुछ रूट्स के साथ वो तो होस्ट के साथ बंधा हुआ होता है, टाइटली होस्ट को पकड़ के रखता है, दे आर कॉल्ड एज क्लिंगिंग और क्लास्पिंग रूट। और कुछ रूट हवा पे टहलता रहता है, जिनके टिप पर एकदम पॉइंट पे कुछ डेड मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग टिश्यू है, जिसको वेलामेन कहा जाता है। वेलामेन हाइग्रोस्कोपिक टिश्यू, मतलब मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग टिश्यू, जिनके सहारे वो एनवायरमेंट से मॉइस्चर इकट्ठा करता है। लास्टली इंसेक्टिवोरस प्लांट। वो नॉर्मल ग्रीन प्लांट थे, ऑटोट्रोफिक, खुद अपना खाना बना पाता है, लेकिन वो जैसे जमीन पे ग्रो करता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रोइंग इन द टाइप ऑफ सॉइल वेयर नाइट्रोजन सप्लाई इज इन डेफिशिएंट, इसलिए वो छोटा छोटा इंसेक्ट को ट्रैप करके डाइजेस्ट करता है, सो दैट दे कैन फुलफिल देयर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। जैसे कि नेपेंथिस खासियाना, जिसको हम कॉमनली पीचर प्लांट कहते हैं, सनड्यू, वेनस फ्लाई ट्रैप, दे आर द एग्जांपल ऑफ सम ऑफ द इंसेक्टिवोरस प्लांट। कुछ तो पानी में भी होता है। इन एक्वाटिक कार्निवोरस प्लांट लाइक ब्लैडरवर्ट, देखो ये है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ और डायग्राम ऑफ पिक्चर ऑफ ए pitcher plant. Okay, so these are the also insectivorous plant. Okay, जैसे कि I have given you the name like sundew, then Venus flytrap. Okay, now ये जो प्लांट देख रहे हो ना, इसको ब्लैडरवर्ट कहा जाता है। वो पानी में रहता है। दिस इज अ लीफ जो सेगमेंटेड है, छिरा छिरा, एंड उनके लीफ में छोटा छोटा ब्लैडर है। यू कैन सी दिस इज द ब्लैडर, छोटा छोटा। उस ब्लैडर के अंदर एंजाइम्स है, डाइजेस्टिव एंजाइम। सो पानी के बहाव में जब इंसेक्ट अंदर आ जाता है, तब वो इंसेक्ट को ट्रैप करके उनको डाइजेस्ट कर लेता है डाइजेस्टिव एंजाइम से। एंड इट इज द ओनली वन इंसेक्टिवोरस प्लांट फाउंड इन कछार डिस्ट्रिक्ट। पानी में रहता है
So these are insectivorous plant. So we have discussed today about the structure of the angiosperm. We have discussed about the nutrition pattern of the angiosperm, like parasite, saprophyte, epiphyte, and even the insectivorous plant. And in the next slide, we will discuss about the habitat.